हमने ये फॉर्मूले कर लिए थे ना, स्ट्रेस, स्ट्रेन, so stress was sigma F by A, force by area, strain is epsilon, and Hooke's law was that stress is directly proportional to strain, or stress is equal to modulus of elasticity, y is a constant, modulus of elasticity or Young's modulus, or y is equal to sigma by epsilon, which is F by A over delta by L. ये था. And as such, quartz is the most elastic material and second most elastic material steel. ये हमने लास्ट क्लास में किया था. तुम कहाँ थे लास्ट क्लास में? कौन सा कंपटीशन? ओके. इसका मैंने असाइनमेंट शेयर किया था दिव्या. किया हुआ है? क्या बात कर रहे हो? नहीं. ओ. वन मिनट. बुक से करते हैं क्वेश्चंस फिर. फॉर्मूले लिख लो, क्वेश्चंस करते हैं फिर. राइट ए क्वेश्चन. जी क्वेश्चन लिखो. A weight of 1 kg, a weight of 1 kg is suspended from weight of 1 kg suspended from the lower end of a wire, from the lower end of of a wire of cross section 10 millimeter square, of cross section 10 millimeter square,
Find the magnitude. Find the magnitude and direction of stress produced. Find the magnitude and direction of stress produced in it. When the question says stress, direction of stress तो वैसे होता नहीं है, restoring force पूछ रहा है वो. Direction of restoring force produced. Take G is equal to 9.8. Take G is equal to 9.8. करो. हो गया. तुम्हें वेट दिया हुआ था, मतलब फोर्स is been given to us. Force would be m into g. Mass is 1 kg. 9.8 दे रखा है वो. तो फोर्स हो जाएगा 9.8 न्यूटन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यू नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर. 10 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो. मिलीमीटर इज 10 to the power minus 3 the whole square. 1 millimeter square is 10 to the power minus 3 whole square हो जाएगा. So area would be 10 to the power minus 5 meters square. So you can find the stress. Stress would be F by A. F कितना हो गया? 9.8 and this is 10 to the power minus 5. The stress is developed would be 9.8 into 10 to the power 5 Newton per meter square. ये आ रहा है. And since the force is tensile, stresses developed would be like this. This would be restoring force. Wire will apply force in the opposite direction to the force applied, which is the restoring force. So it will be in the upward direction. Next question. पहले लिख लो. A steel wire, a steel wire of unloaded length, a steel wire of unloaded length 1.5 meter, and a brass wire of unloaded length, and a brass wire of unloaded length 1 meter
A brass wire of unloaded length 1 meter are loaded as shown in the figure. Are loaded as shown in the figure. Can draw the diagram. NCRT question है वैसे तो ये. This is 1.5 meter. This is of steel. This is 4 kg. This is 6 kg. This is 1 meter. And this is brass. डायग्राम बन गया. आगे लिखो. The diameter of each wire is 0.25 centimeter. Diameter of each wire is 0.25 centimeter. Compute elongation of the two wires. Compute elongation of two wires given Young's modulus of steel. Given Young's modulus of steel 2 into 10 to the power 11 Pascal. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं. ठीक है. 1 Newton per meter square is 1 Pascal. Both are SI unit of pressure or stress also, and Young's modulus also. And you've been given Y of brass also, which is 0.91 into 10 to the power 11. कर लो. G को 9.8 लेना है. Take G as 9.8 meter per second. दोनों का डेल्टा एल निकालना है. फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी है. अलग अलग निकालना है डेल्टा एल. फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. And you can use this formula F by A by delta L by L. हमें डेल्टा एल निकालना है. एफ एल बाय वाई ये हो जाएगा. ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा. डायमीटर ईच वायर तुम्हें दे रखा है. 2R कितना दिया हुआ है? 0.25 सेंटीमीटर. तो यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू मीटर आल्सो. तो 0.125 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. बिकॉज हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में निकालना होगा. तो यू फाइंड टेंशन इन ईच वायर. एफबीडी बना लो. तो दोनों वायर में फोर्स निकल जाएगा. इस पे लग रहा है फोर्स 6 into G डाउनवर्ड. टेंशन फोर्स इसका T1 ले लेते हैं. इसमें हो जाएगा T1 और 4G डाउनवर्ड लगेगा. तो इसका टेंशन फोर्स T2 हो जाएगा. ठीक है. ऊपर वाले वायर पे टेंशन ज्यादा होगा क्योंकि उसमें नीचे वाले का भी ऐड हो रहा है. सो T2 वुड बी T1 प्लस 4G. T1 हो जाएगा 6G. T इज बेसिकली F ओनली. जो टेंशन फोर्स है F ही है वो. तो T पहले निकाल के फिर इस फॉर्मूले में डाल दो. पहले ब्रास के लिए सॉल्व कर लो. ब्रास के लिए F1 की जगह T1 आ जाएगा.
तो अगर तुम इस वाले को सॉल्व करोगे तो T1 हो गया 6G, और 6 × 9.8 न्यूटन। सेकेंड वायर में कैसे लगेगा, T2 इज इक्वल टू 4G + T1। तो T2 हो जाएगा 4G+, so T2 will be 10G, 98 न्यूटन। तो स्टील के लिए T2 लेना पड़ेगा तुम्हें, और ब्रास के लिए T1 लेना पड़ेगा। तो एक बार ब्रास के लिए सॉल्व कर लो। F हो जाएगा T1, वो तुम्हें दे रखा है, बाकी से मैं सारा वैल्यूज दे रखी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद से करना, कैलकुलेटर यूज मत करना। डेल्टा एल बहुत छोटा आएगा। तीन का
Delta L is always a small value. हो गया, दिव्या आ गया। ब्रास का डेल्टा एल कितना आ रहा है? एफ था हमारा T1 विच इज 6 into 9.8। एल दे रखा है 1 मीटर डिवाइडेड बाय वाई। वाई फॉर ब्रास कितना दे रखा है? 0.91 10 to the power 11, and the area of cross section is pi r square, so 3.14 into r square। ये 22/7 भी ले सकते हो बिकॉज 7 से 0.91 कट जाएगा। सो आई टेक 22/7 पाई हो गया इंटू आर स्क्वायर। आर इज 125 10 to the power -5 होल स्क्वायर। उसको मैंने -5 कर दिया। सो डेल्टा एल विल बी 6 into 9.8। ये हो जाएगा 91 into 10 to the power 9। 22/7, 7 से 91 कट जाएगा। 125 into 125 into 10 to the power -10। 10 to the power 9, 10 to the power -10, 10 to the power -1 बचेगा। तो 6 into 98 हो गया ऊपर। ये आ गया। हम्म। हाँ, पहले ब्रास का कर रहा हूँ पहले। मीटर। देख बताता हूँ आंसर। जिया कर लिया? तो कैलकुलेट करनी बहुत लंबी है। कितना बता रहे हो तुम ब्रास का? ये का आ गया। थोड़ी सी गलती है, पावर गलत है। तुम्हारा कितना आ रहा है? तो तुम तुझसे कर लो ना वो कैलकुलेटर से। यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। स्टील का आ रहा कितना? है 1.49 into 10 की पावर -8। -8? पावर गलत आ रही है, बाकी तो सही है। पावर चेक करो। अगर मान लो मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और 10 to the -4 से मल्टीप्लाई, एक ही बात है। और फिर मैं इसको 25 से काट देता हूँ। 25 into 5 125 होता है। 25 into 4 100 होता है। ये आ गया। फिर इसको 25 से काट देता हूँ। 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50। ये हुआ नहीं, 6 होगा। और 25 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स। फिर 2 से ये काट दो, 2 से ये कट गया। तो बेसिकली ये आ रहा है 3 into 98 into 16 into 10 की पावर -4। दिस इज 13 into 11 into 25। नहीं, -7 नहीं आएगा। ये -4 आ रहा है मेरा भी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा? उसके साथ 10 raised to power -3 भी आ रहा है। नहीं, ये 100 बन जाएगा। आपने 125 into 10 की पावर -5 क्यों लिखा? ये 0.125 था ना। 0.125 को आई कैन राइट 125 10 to the power -3। या तो 10 to the power -5 हो गया फिर वो। तो इसका स्क्वायर किया, पाई आर स्क्वायर होगा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर। तो 12 into 98 into 16 डिवाइडेड बाय 13 into 11 into 10 to the power -6 मीटर।
तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.3 आ रहा है, 1.3 10 टू पावर -4। For the brass, it is 1.3 into 10 to the power -4. अब स्टील का करके देखो। स्टील में फोर्स डिफरेंट हो जाएगा, स्टील का फोर्स हो जाएगा T2 98 न्यूटन हो जाएगा। तुमने स्क्वायर नहीं किया क्या इसको, πr²? फिर तो आना चाहिए था, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ये तो सेंटीमीटर था, तो मीटर में तो -4, अच्छा -4 कर दिया। क्या स्टील में 1.49 इंटू ये 10 10 की टू पावर -2 कहाँ गया ये वाला? हाँ, क्या स्टील में 1.49 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है? नहीं 1.5 10 टू पावर -4। स्टील में भी वही आ रहा है। स्टील वाले में सिर्फ फोर्स तो चेंज हो जाएगा ना। स्टील का यहाँ पे करके दिखाता हूँ तुम्हें। स्टील में डेल्टा एल विल बी, फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स कितना हो गया 98 न्यूटन। एल कितना है 1 मीटर। और स्टील का तुम्हें दे रखा है 2 × 10⁻11। सर एंड एल 1.5 नहीं होगा? 1.5 है किसका? स्टील वाले उसमें 1.5 था। अच्छा, ठीक है 1.5 कर लो। तो ये 22/7 एंड दिस इज 125 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। So 98 into 1.5 into 7, you get 2 into 22 into 10 to the power 11, 125 into 125 into 10 की पावर -10। तो 11 से 10 कट जाएगा, 10 नीचे बचेगा एक, ठीक है। तो ये जाएगा 98 इंटू 1.5 इंटू 7 बाय 44 इंटू 125 इंटू 10, ये आ रहा है। एक 1.5 का डेसिमल लगा के नीचे 10 कर दिया मैंने। ट्वेंटी फाइव। फिर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 4 से, ताकि 25 इंटू 4 100 हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तुम्हारी। तो नाउ आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 4 एंड डिनोमिनेटर बाय 4। तो ये जब ये 25 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम 100। तो 10⁻4 हो जाएगा ये। तो ये कैलकुलेशन ये हुई 20 49 21 इंटू 4 बाय 22 इंटू 125 10⁻⁻4। This quantity inside the bracket will be approximately 1.5.
देख लो करके इसको। क्योंकि 21 22 से अप्रोक्सीमेटली कट गया, ये हो गया 200, 200/125 इज 1.49 और 1.5। आ रहा है अब? और 1.4 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डेसिमल तक देखो, 1.49 होगा वो। हाँ 1. 1.49 10⁻⁻⁴ मीटर। देखिए वैसी कैलकुलेशन एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। क्या ग्रेविटेशन भी बहुत गंदी कैलकुलेशन आई। हम्म। तो हम्म। फिर मैं कैसे करूँ। अप्रोक्सीमेट थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हो, जैसे मैं 22 को 21 से काट देता, 49 को 50 कर देता, तो अप्रोक्सीमेटली आ ही जाएगा आंसर। देखो, इफ आई मेक दैट अप्रोक्सीमेशन हियर, 49 को आई विल मेक 50, 21 को मैंने 22 से काट दिया, तो 25 टू जो 50, 25 125, तो 10/5 इंटू 10⁻⁻, तो नो, एट 8/5। तो 1.6 हो गया। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाता है कितना आ रहा है। वो 1.5 आ रहा था वैसे। तो मतलब कम से कम बिल्कुल एकदम से गलत तो नहीं होगा ना। सबसे हम्म, बड़ी बात है पावर देखना, पावर का वो ना सही होना चाहिए, इंडेक्स हैज टू बी द सेम। बिकॉज 10⁻⁻6 10⁻⁴ में बहुत डिफरेंस आएगा, 100 टाइम्स का डिफरेंस आ गया। दैट शुड नॉट अकर। देखो, मैं तुम्हें असाइनमेंट सेंड किया है ना अभी। इस ये वाला बुक सीबीएसई लेवल व्हाट? इज दिस बुक सीबीएसई लेवल। हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, लाइक सॉल्व एग्जांपल्स, जो कि एंट्रेंस के भी हैं। बट इफ यू डू इट फॉर सीबीएसई, देन सीबीएसई तो बिल्कुल ढंग से हो जाएगा। आई डिड ग्रेविटेशन से। क्या? मैंने इससे ग्रेविटेशन किया था उससे फिर? हो गया। उसमें एक दो क्वेश्चन है जिसमें सेंटर ऑफ मास और सब हाँ, कुछ। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो ना, वो हो स्फीयर में से स्फीयर कट किया, दैट्स एंट्रेंस लेवल क्वेश्चंस। असाइनमेंट देखो अब।
क्वेश्चन नंबर 13 करो। हम्म। हार्ड कॉपी नेक्स्ट टाइम दूंगा। अभी ऐसे से देख लो। क्वेश्चन 13 करो, 1 3। क्वेश्चन 13 एंड 20 दोनों करेंगे, 20 पे करेंगे। Can I take G as 10? हाँ, जी को 10 ले लो। तुम लोग कैलकुलेशन वैसे परेशान हो। मेरा एक इंडेक्स ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? मतलब मेरा 0.0015 सेंटीमीटर आ रहा है और उनका आंसर में 0.015 सेंटीमीटर आ रहा है। ये एक डेसिमल प्लेस की गलती क्यों आ रही है? तो
डायमीटर 2 mm था। अ, 13 क्वेश्चन कर रहे हो ना? उसको रेडियस में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर को मीटर में किया। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? You've been given diameter which is how much? 2 millimeter. 2 into 10 to the power minus 3 मीटर। तो R आ गया 1 into 10 to the power minus 3 मीटर। इंक्रीज इन लेंथ निकालना था, डेल्टा एल। दैट्स ए क्वेश्चन मार्क। एफ अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 kg वेट। केजी वेट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो जी से मल्टीप्लाई करते हैं, जी को 10 ले लेते हैं, ठीक है? 30 न्यूटन आ गया। यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर इज बिन गिवन, वो 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तुमने कन्वर्ट किया इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में? नहीं हाँ, नहीं किया। वही ना, वही गड़बड़ हो गई। तो 12.5 10 to the power 11, डाइन को करो न्यूटन में, 10 to the power -5 न्यूटन। आई थिंक हमें ना सब कुछ को सेंटीमीटर में करना चाहिए क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर ही आ रहा तो फिर यहाँ पे ग्रेविटी तुम 980 लोगी, ये न्यूटन को फिर डाइन में कन्वर्ट कर लो। है। किया होगा? नहीं ना? तो अब तुम्हें एक और चीज पता लग गई, जब भी तुम्हें डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, दिस इज अ रिलेशन। या ऐसे याद कर लो ना, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So Young's modulus is coming out to 12.5 into 10 to the power 10 Newton per meter square. अब मैच हो गया। हम्म, अब मैच हो गया। हो गया ना? फिर तो फॉर्मूला तुम्हें मालूम है क्या हो रहा है। फॉर्मूला डेल्टा एल फाइंड करना, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाय वाई ए। एफ इज 30, एल इज एल दिया हुआ है। एल दिया हुआ है, डेल्टा एल निकालना एल कितना दिया हुआ है? है। मीटर। अच्छा, 12.5 को 125 करके 10 to the power 9 कर दिया मैंने। एरिया क्रॉस सेक्शन पाई 22/7 ले लेते हैं। R² इज 10 to the power -3 का होल स्क्वायर 6 हो जाएगा। 60 into 7 by 125 into 22 into 10 की पावर -3। ये 1.5 0.15 हम्म, कितना रहे? 0.15। इसको तुम चाहो तो मिलीमीटर में भी कर सकते हो। तो 0.15 मिलीमीटर, 10 to the power -3 meters 1 millimeter। What is tensile strength? Tensile strength is basically the maximum force you can apply up to which the wire will not break। तुमने देखा होगा नॉर्मली कोई पतला सा वायर, उसको मैं तोड़ना है तो हम ऐसे करते हैं, उसको बार बार मोड़ते हैं, है ना? इफ यू हैव अ वायर, थिन वायर एंड यू वांट टू ब्रेक इट फ्रॉम हियर, तो तुम इसको ऐसे मोड़ते रहो। एंड आफ्टर सम टाइम विल सी वो उसको हीट भी हो जाता है और वहां से बहुत थिन हो जाता है, अल्टीमेटली टूट जाता है।
सो हर मटेरियल का एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि उसके बियॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा. सो दैट्स कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम फोर्स विच इट कैन विथस्टैंड. ठीक है, हो गया तुम्हारा सबमिट. सपोज दिस अ वायर, रॉड ले लेते हैं, मेटालिक रॉड जिसका लेंथ एल है, इसकी डेंसिटी, इसका मास एम दे रखा है हमें, इसका रेडियस आर है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल. उसकी अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मास ऑफ द वायर. तो जब मास, कोई हैवी वायर हमने हैंग किया, तो वो अपने आप में तो फोर्स लगाएगा ना. सो द वायर विल पुल इट, इटसेल्फ. यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा इस एंड पे, इस एंड पे तो पूरा mg लग जाएगा, पूरा 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 वायर का मास है. यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स जीरो होगा बिकॉज कोई भी मास नहीं है. नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने. यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा mg के बराबर अपर एंड पे, लोअर एंड पे इसका फोर्स जीरो होगा. नहीं, यहाँ पे थोड़ी, इस पॉइंट के बिलो थोड़ी यू यू हैव एनी वायर इट सेल्फ. इफ आई हैव अ वायर ऑफ लेंथ ए बी, तो बी पे तो पूरे वायर का वेट हैंग हो रहा है, जबकि इस लोअर एंड पे तो फोर्स जीरो है, बिकॉज इस एंड के नीचे थोड़ी वायर अपने आप को पुल कर रहा है. तो एज सच, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं. तो एवरेज फोर्स ऑन द वायर कितना होगा, एफ प्लस जीरो बाई टू, दैट इज एफ बाई टू. एंड देन वी कैन फाइंड एक्सटेंशन इन द वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट. क्या फॉर्मूला था हमारा, एफ एल बाय वाई डेल्ट वाई ए. तो यहाँ पे एफ बाई टू हो जाएगा बिकॉज एवरेज फोर्स ऑन द वायर बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट वुड बी दिस मच. तो अब ये बात समझ में आ गई ना, एवरेज वेट एफ बाई टू क्यों हुआ. इस पॉइंट पे टोटल, हमने इस वायर पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया. ये वायर अपने वेट की वजह से ही सच लंबा हो जाएगा, बिकॉज कुछ एक्सटेंशन इसमें होगा, बिकॉज यहाँ पे फोर्स लग रहा है पूरे वायर के वेट की वजह से, विच इज एम जी. लोअर एंड के नीचे कोई वायर नहीं है फर्दर, तो उसमें कोई फोर्स हमने लगाया ही नहीं एक्स्ट्रा. एफ यहाँ पे जीरो है. तो एवरेज फोर्स ऑन द वायर वुड बी दिस प्लस दिस बाय टू. तो एक्सटेंशन इन द वायर बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट का फॉर्मूला तुम्हारा ये बन जाता है. हेडिंग लिख लेना, एक्सटेंशन इन अ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट. बोलो. मैं ना आपकी क्लास से पहले मेरी स्कूल की रेफरेंस बुक कर रही थी, तो हम्म. उन्होंने कुछ बहुत अजीब सा किया. उन्होंने सेंटर इंटीग्रेशन से अगर करके किया है ना, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है, मैं इसलिए तुम्हें सिंपल वे बता रहा हूँ. उन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया है और फिर ऊपर का नीचे का वेट अलग अलग है. वो इंटीग्रेशन करके किया होगा, वो नहीं कर रहा मैं. हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं बिकॉज वी नो कि अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स वायर पे नहीं लगाया तो यहाँ पे फोर्स जीरो, यहाँ पे फोर्स एफ है जो कि एम जी के बराबर है, दोनों को आधा एवरेज कर दिया. उससे इंटीग्रेशन से वही आंसर आएगा, अननेसेसरी तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा उसमें. मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, डीएक्स लेंगे, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, आंसर वही आएगा. तो दिस इज एक्सटेंशन इन अ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, एफ एल बाय टू वाई ए. तो एफ, अगर एफ कैसे निकलेगा, एफ हो जाएगा एम जी. और अगर हमें डेंसिटी भी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एम को तुम लिख लोगे पाई, पाई आर स्क्वायर, तो वही हो गया ना, ए इंटू एल. ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेयर ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. तो एम वुड बी ए एल इंटू रो. रो इज डेंसिटी ऑफ द वायर. ए से ए कट जाएगा, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, रो एल स्क्वायर बाय टू वाई. एक्सटेंशन इन अ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट. चाहो तो तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. अगर उसका मास दे रखा है
अदरवाइज डेंसिटी दे रखी है तो वी कैन यूज दिस. और जीएस स्कूल में क्या हो रहा है? सब ग्रेविटेशन है। अच्छा. हाँ जी. असाइनमेंट में होना चाहिए क्वेश्चन कोई. नहीं. क्वेश्चन लिखो. द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर the length of a copper wire is 10 meter. The length of copper wire is 10 meter and its mass per unit meter is 50 gram. Its mass per unit meter is 50 ग्राम. मतलब 1 मीटर का मास 50 ग्राम है. Determine the increase in its length. Determine the increase in its length when a 2 kg weight is suspended from it. When 2 kg weight is suspended from it. Given Young's modulus of copper 1.2 into 10 to the power 11. Young's modulus of copper 1.2 10 to the power 11 Newton per meter square. Density of copper is 8.9 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Take gravity as 9.8. Take g is equal to 9.8. अब इस बार क्या हो रहा है कि वायर का अपना वेट भी होगा बिकॉज 10 मीटर लॉन्ग वायर है. तो तुम्हें दो इंक्रीज इन लेंथ निकालनी पड़ेगी. एक तो इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगी, डेंसिटी दे रखा है, तो दिस इज ड्यू टू इट्स ऑन वेट, है ना. प्लस यू कैन फाइंड इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वेट यू हैव पुट ऑन इट. उस वाले से निकालोगे FL/YA. फिर दोनों को ऐड कर देना. एक इंक्रीजिंग लेंथ आएगा बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट ऑफ द वायर, दूसरा इंक्रीजिंग लेंथ आएगा बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वेट यू हैव सस्पेंडेड. वायर पे तुमने एक्स्ट्रा वेट सस्पेंड किया हुआ है ना, यहां तो मैंने एक्स्ट्रा वेट फोर्स लगाया नहीं था ना,
लेकिन इस क्वेश्चन में उसने एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया है, एक्स्ट्रा mg भी लगा रखा है। तो एक तो उसकी वजह से निकालोगे डेल्टा एल, और दूसरा वायर की अपनी वजह से निकालोगे डेल्टा एल, दोनों को निकाल के ऐड कर देना। वायर की अपने वेट की वजह से कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? डेल्टा, ये वाला यूज कर लेना। डेंसिटी दे रखी है, लेंथ दे रखी है। अगर बोला है कि मास पर यूनिट मीटर इज 50 ग्राम और 10 मीटर का है, तो डू वी हैव टू यूज दैट? हाँ, वो के साथ में कैसे यूज कर लूँ सब कुछ? उसमें नहीं आएगा ना वो। देखो, अगर तुम बिल्कुल बेसिक से करते हो तो इसमें यूज ये वाला करोगे। इसमें तो आ गया मास ऑफ द वायर। हाँ। अगर तुम डेंसिटी वाले फॉर्मूले से करते हो तो तुम्हें मास ऑफ द वायर लेना ही नहीं पड़ेगा। तो मतलब वो ऐसे ही दिया हुआ है? दोनों नहीं, ऐसे नहीं दिया हुआ है। सपोज यू समबडी वांट्स टू आंसर यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो उसको फिर मास ऑफ द वायर लेना पड़ेगा ना। मास ऑफ द वायर विल बी हाउ मच? 50 ग्राम पर यूनिट लेंथ है ना, इंटू। इंटू 10, मतलब 500 ग्राम। दैट इज 0.5 kg हो जाएगा। तो अगर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो 0.5 लेना पड़ेगा एम को। नहीं तो अगर तुम डेंसिटी वाले से करो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, इजी है। इसमें तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में नहीं आ रहा है ना, कट गया था। सो डेल्टा एल ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है, वो निकाल लो पहले। रो एल स्क्वायर बाय 2y से निकालो पहले। वायर के अपने वेट की वजह से जो इलोंगेशन हो रहा है वो कैलकुलेट करो, और दूसरा वाला निकालोगे बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वेट। एक्स्ट्रा वेट सस्पेंडेड, उसमें तो तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा FL/YA। आराम से सॉल्व करो, विदाउट हरी, विदाउट एनी सिली मिस्टेक। क्या एरिया के लिए मुझे मास अपॉन डेंसिटी अपॉन लेंथ करना पड़ेगा? हाँ, एरिया में तुम्हें वो नहीं दे रखा ना इसने। रेडियस नहीं दिया हुआ। ने हाँ, तो निकालना उससे करना पड़ेगा। तो मास मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से करो, ये आ जाएगा। फिर द सेकंड पार्ट यू हैव टू यूज एरिया ना। पहले पार्ट का कितना आंसर आ गया? 3.7024 इंटू 10⁻⁻⁶मीटर। सो डेल्टा एल बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट ना, हाँ।
क्या हुआ श्योर है? सेकंड वाला पहले वाले से बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा है ना, एक्स्ट्रा वेट लग रहा है ना उसमें। इस इसका अपना तो 0.5 ही था, जबकि वो तो एक्स्ट्रा वेट जो तुमने रखा है वो 2 kg है। वो कितना आ रहा है? 290.14 इंटू 10⁻⁻⁶। क्या बात कर रही हो? उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो एक बार जरा। भाई एफ मिलीमीटर में आंसर दिया है इन लोगों ने। पहला वाला तुमने डेंसिटी से कर लिया होगा ना, 8.9 इंटू 10⁻³ एल कितना था? 10 मीटर। तो 100 हो जाएगा बाय 2 वाई। वाई कितना दिया है? वन वन पॉइंट 10⁻11। ये मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज 89/24 इंटू 10 की पावर कितना हो गया ये? 5, और ये -6 मीटर। यही था। हाँ। तो 89/24 कितना हो गया? डिवाइड करना जरा। आपने इतना सब कुछ कैसे काट दिया? क्या? कुछ सर ये 3.7 है। 3.7 into 10⁻⁻⁶ 3.7। मेरा भी उतना ही आ रहा है। 3.7024 इंटू टेन की पावर ठीक है, माइनस। तो इसको मैं मीटर मिलीमीटर में कर लूँ ना। तो -3 हो जाएगा। ये आ गया। अब इस वाले में क्या करना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा मुझे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा? मास ऑफ द वायर में दे रखा था कितना? 5। 0.5 kg, right? Mass of the wire. This will be volume of the wire, that is A. Area of cross section into L into density. That is area of cross section इसका आ जाएगा 0.5/L रो। इसमें डाल देते हैं एरिया में। तो FL/YA। ए कितना है? 0.5 इंटू एल रो। हमें फोर्स कितना दे रखा था? कितना एक्स्ट्रा वेट लगाया है? 2 kg। हाँ, 2 kg एक्स्ट्रा वेट है। एल स्क्वायर हो जाएगा 100। एल 10 था, डेंसिटी हमें मालूम है 8.9 10⁻³ यंग्स मॉडुलस मालूम है 1.2 10⁻11। 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया। हाँ बोलो। 0.29 0.8 क्यों नहीं किया? किसको? अच्छा हाँ, आ, वो मिस प्रिंट हो गया, करेंगे। नाराज मत हुआ करो तुम। नहीं होगी। ठीक है, तो 2 kg को 1 न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको तुम सॉल्व कर लो। 290.14 इंटू 10⁻³ आ। ओके, दोनों को फिर ऐड कर दो चुपके से। तो 290। सो 98 इंटू 8.9/3 इंटू 10⁻⁻⁶। ये तो काफी ज्यादा आएगा ना कंपेयर टू दैट। 10 मीटर था, 10 का स्क्वायर हो गया। तो कितना बता रहे हो तुम? ये 98, 89 कट जाएगा ना 3 से? 89 3 से नहीं कट रहा ना? अप्रोक्सीमेटली कर दें? 98 को 32.6 कर लिया 3 से काट के, और फिर मल्टीप्लाई कर लिया। 3 कर देता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। 290.14 आ रहा है। 290 14।
इंटू 10⁻³ अब ये दोनों ऐड हो हाँ, जाएंगे। तो 293.84 होगा। 10⁻³ millimeter. That is final answer is 0.2938 millimeter और 0.294 राउंड ऑफ कर दिया, ये आ गया। क्वेश्चन 20 जरा देखो कैसे करोगे। 20। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है? हम्म। तो फिर दोनों का स्ट्रेस सेम हो जाएगा। देखो फोर्स सेम होगा ही नहीं होगा, तुम दैट हाउ कैन यू बी डिसाइड विल द फोर्स बी सेम और नॉट। मेरे ख्याल से दोनों का एलोंगेशन सेम होगा बिकॉज फोर्स इक्वल नहीं होगा ना, दोनों का एलोंगेशन इक्वल होगा। एंड दे बेसिकली आस्किंग इक्विवेलेंट। क्या? हाँ इक्विवेलेंट वाला पूछ रहे हैं ना वो, तो इक्विवेलेंट में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव अ सिंगल वायर having same area of cross section, same length. This is equivalent to one wire of same length, same area of cross section as they are, जिसका हमें y निकालना, y इक्विवेलेंट निकालना है। ऐसे कुछ कर सकते हैं हम। मतलब इन दोनों वायर को हम अगर डिस्प्लेस करके एक सिंगल वायर लगा दें तो उसका y कितना होना चाहिए, ये होगा। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको f ले लेते हैं, ये F1 है ये F2 है, तो एस सच ये भी एफ होगा बिकॉज वेट तो वही रहेगा। तो एफ इज इक्वल टू F1 + F2 कर लेते हैं। एफ का फॉर्मूला तुम यहाँ से निकाल सकते हो,
y इज इक्वल टू एफ बाई ए बाय डेल्टा एल बाय एल। तो f कितना आएगा यहाँ से, वाई ए डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल सेम है। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा ये वाला इक्विवेलेंट वाला, है ना। तो जाएगा वाई इक्विवेलेंट जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एल बाय एल। F1 इसके लिए हो जाएगा पहले वाले वायर के लिए, ये हो जाएगा y1 ए डेल्टा एल बाय एल। ये हो जाएगा y2 ए डेल्टा एल बाय एल। तो मेरे ख्याल से तो फिर ये आ गया, y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये होना चाहिए। ये होना चाहिए ना। चेक करो आंसर जरा। y1 y1 2 दे रखा है ना हमें। y1 कितना है, y1 is 2 into 10 to the power 11 पास्कल। y2 है 0.9 into 10 to the power 11, so it will be 2.9 10 to the power 11। मैच नहीं होगा, हम्म। मैच नहीं हो रहा। So this given 1.45 into 10 to the power 11 Pascal. कौन से वाला, अच्छा आंसर है। 1.45 दिया हुआ है। कहाँ गलती हो रही है फिर। एक टू वायर ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जो हम यहाँ पे वायर ले रहे हैं उसको डबल थिकनेस का लेना पड़ेगा, उसका एरिया 2a हो जाएगा। विल इट बी लाइक दैट कि जो हम सिंगल वायर लेंगे, वी हैव टू टेक इट्स एरिया एज द सम ऑफ द टू एरियाज। है। भाई हमने इक्विवेलेंट वायर का तो एरिया सेम ले लिया ना, लेंथ भी सेम ले ली। सो सिंस द वायर, या तो वो आंसर तभी पॉसिबल है जब उसका एरिया तुम डबल ले लो इन दोनों को ऐड करके। यू टेक a सिंगल वायर whose area is sum of these two areas। Will it be y1 plus y1 y2 upon 2? हाँ फिर आएगा उस केस में, तो दिस विल बी 2a इन दैट केस। तो y1 प्लस y2 हो जाएगा। So equivalent wire you have taken of the area of cross section, which is sum of the area of cross section of individual wires।
Next is shear modulus or modulus of elasticity, rigidity. Modulus of elasticity और modulus of rigidity. अभी जो हमने फोर्स लगाया था इट वाज नॉर्मल फोर्स, ठीक है, या तो कंप्रेसिव फोर्स था वो, इट वाज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या तो टेंसाइल फोर्स था या फिर कंप्रेसिव फोर्स था. The force we applied was either compressive or tensile. लेकिन अगर फोर्स पैरेलल टू अ सरफेस लगाएं, सपोज ये है रिजिड बॉडी जो कि ग्राउंड पे फिक्स्ड है, ग्राउंड से फिक्स कर दिया, एंड इफ यू अप्लाई फोर्स पैरेलल टू द टॉप फेस, उसको बोलते हैं shear force or tangential force. Force applied parallel to the surface of a body is called shear force or tangential force. इसका मैं दूसरा व्यू बनाता हूं. This is shear force or tangential force. Force applied parallel to the surface. तो इससे क्या होगा, अगर तुम फोर्स पैरेलल टू द सरफेस लगाओगे तो टॉप फेस शिफ्ट हो जाएगा हल्का सा. The top face will be shifted slightly like this. एंगल भी चेंज हो जाएगा. हाँ, एंगल चेंज हो गया ना, ये दिस हैज चेंज बाय एंगल थीटा. So this angle theta is called shear strain. ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. अब तुम लोगों को टेस्ट देना है रोटेशन. रोटेशन का देना चाहोगे, ग्रेविटेशन का दोगे पहले? ग्रेविटेशन. क्या बात है. ठीक है, तो ग्रेविटेशन का टेस्ट कब रखें? कमिंग वेडनेसडे. हाँ, ठीक है. ऑल राइट, कमिंग वेडनेसडे वी हैव अ टेस्ट ऑन ग्रेविटेशन. और जिया तुम्हें ऑनलाइन दोगे ऑफलाइन दोगे? मैं ऑनलाइन ही दे दूंगी। ऑनलाइन. हाँ जी, ठीक बट है, मैं फ्राइडे को नहीं दे पाऊंगी, तो मैं सैटरडे को दूंगी। तो सैटरडे तुम ऑफलाइन ही दे दोगे वहां पे आके इंस्टीट्यूट में फिर? और सैटरडे ऑलरेडी एक टेस्ट है ऑफलाइन वाला। अच्छा, ठीक है. हाँ जी। ऑल राइट, तो कमिंग वेडनेसडे टेस्ट ऑन ग्रेविटेशन. वेडनेसडे रखना है फ्राइडे रखना, बताओ? फ्राइडे तो मेरे ख्याल से फिर वही आ जाएगा ना, दिवाली आ जाएगी. नहीं, नहीं, वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे इज फाइन. ऑल राइट, राइट देन, एंडिंग द क्लास. So बाय.